Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So before I start the video solution, I have an important update for you. So we are excited to announce our second online batch. The batch is scheduled to start from 28th May 26, and this is going to be a evening batch 7:30 to 9:30 का batch जो कि हफ्ते में 5 दिन का होने वाला है. हिंदी इंग्लिश ब्लेंडेड लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करने वाले हैं एंड दिस बैच इज गोइंग टू बी मेंटर्ड बाय मुकुल सर फॉर वीआरसी, हेमंत सर फॉर डीएलआर सेक्शन एंड फॉर क्वांट्स अमित सर वुड बी देयर. तीनों ही मेंटर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे. यू कैन रेफर टू दोज वीडियो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेंटर्स एंड you will get to know how do they teach and what is their pedagogy and how do they communicate in the class. And once you make up your mind that you want to enroll with us, you can connect us with on this number. You can call us on this number. और मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे रहेगा. वो लिंक पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो. समवन फ्रॉम माय टीम विल कॉल यू एंड हेल्प यू विद द एडमिशन प्रोसेस. सो एनरोलमेंट के बाद यू विल हैव एक्सेस टू दी तीनों मेंटर्स लाइव क्लासेस जूम पे चल रही होंगी. दी पोर्टल एक्सेस विच विल हैव प्रेप फॉर कैट एज वेल एज अदर एग्जाम सीटीपीआई एवरीथिंग विच यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए जो जो चीजें की एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड है वो हम आपको उस बैच में दे रहे होंगे. ठीक है. इन केस इफ यू हैव एनी इंक्वायरी आप ये कॉल भी कर सकते हो. द कंसर्न पर्सन विल हेल्प यू आउट एंड वहां पे यू कैन क्लियरली से दैट आई गॉट दिस नंबर फ्रॉम IMS यूपी के यूट्यूब चैनल से. वहां पे मैं आई गॉट दिस नंबर. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द सेट नंबर 4 ऑफ दिस एजेंडा ऑफ दिस प्लेलिस्ट. सो ये वीडियो ये जो सेट है ऑलरेडी शेयर था टेलीग्राम ग्रुप पे. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो क्या कह रहा है? An international athletic federation is organizing 18 track and field events during a championship conducted across 4 stages: round 1, round 2, round 3 and round 4. eight athletic eight athletes, Arjun, Bhavesh, Carlos, Deepak, Ethan, Faisal, Gurpreet and Hero, are participating in these events. Each event is won by exactly one athlete. The championship schedule is structured as follow: round number 1 and 2 each feature 5 events, round number 3 and 4 each features 4 events. Every athlete wins at least one event and at most 3 events. The total number of events won by Arjun, Deepak, Gurpreet, and Hero is exactly the double the number of total number of events won by the other four. The athletes specialize in one of the following categories: sprint, middle class, field event. Among the 8 athletes, 4 specializes in the field event, 2 specializes in the middle distance, and the remaining specialize in the sprint. The athlete represents the 3 team. 4 athletes belong to the team Falcon, 2 to the team Titan, and 2 belong to team Warrior. ठीक है. According to the championship rule, no athletes can win more than one event in the same round. ठीक है. फिर आगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. पहला पॉइंट कह रहा है फैजल टीम फाल्कन एथलीट specializing in field event won only one event and that victory came in round number 4. Arjun specialize in the middle distance and they did not win any event in round 4. None of the team Falcon athletes specialize in sprint and none of the team Titan or team Warrior athletes specialize in middle distance. Arjun and Hero belong to different teams but one event in exactly same round. Carlos and Ethan, both team Warrior athletes from different specialization, won the same number of events. Further, Ethan's win came in consecutive round whereas Carlos did not win. Bhavesh, a field event athlete, won an event in round number 2. Bhavesh and Gurpreet belong to the same team. None of their victory came in the same round. Deepak, a team Titan athlete specializing in sprint, did not win any event in round number 3. Carlos and Hero belong to different specialization. Questions भी पढ़ लेते. Question number 1 कह रहा है how many events were won by athlete from team Falcon? Which of the following statement is must be true? Which of the statement is false? Which of the following is correct sequence representing the total number of events won by athletes from middle distance, sprint and field events respectively? बहुत सारे एलिमेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट का एक स्टैंडर्ड सेट जिसमें कह रहा है कि 8 कैरेक्टर्स हैं वो 8 लोग मिलकर 18 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उनका राउंड्स बता दिया गया है, उनके टीम बता दी गई है, उनकी स्पेशलाइजेशन बता दी गई है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द रफर. ऐसे सेट के अंदर आपको क्या करना है? 2 चीजें. पहला तो पेशेंस, दूसरा यू नीड टू क्रिएट अ गुड रफर. तभी आपकी चीजें क्लियरली दिखाई देंगी एंड देन वंस यू हैव क्रिएटेड द रफर तो वो आपको एक सिनर्जी बनते हुए दिखाई दे रहा होगा जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर्स. ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद 2 थिंग. पहला तो रफ वर्क एंड दूसरा ये एक टेबल है जो मैं सोच पा रहा हूँ. ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद नेम. तो यहाँ पे पहले नाम भर लेता हूँ.
ठीक। कह रहा था कि 8 लोग हैं। अब राउंड नंबर 1, 2, 3, 4 में 8 एथलीट्स हैं जिनका नाम दे दिया गया है। Each event is won by exactly one athlete. The championship schedule is structured as follows. Round number 1 and 2 will have 5 events and round number 3 and 4 will have 4 events. ठीक है। राउंड नंबर 1 में 5 इवेंट है, राउंड नंबर 2 में भी 5 इवेंट है। तो यानी कि हर दोनों राउंड में 5 विनर्स मिलने वाले हैं। राउंड नंबर 3 में अपने पास 4 इवेंट है, राउंड नंबर 4 में भी 4 इवेंट है। तो यहाँ पे 4 विनर्स मिलने वाले हैं। ठीक। अच्छा, एवरी एथलीट विन एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 3 इवेंट्स। हर एथलीट या तो 1 जीत रहा है मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीत रहा है। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट वन बाय ए, डी, जी एंड एच इज एक्ज़ैक्टली द डबल द टोटल नंबर ऑफ इवेंट बाय द अदर 4। ठीक है। ए, डी, जी और एच ने जो नंबर ऑफ इवेंट जीते दैट इज़ डबल द नंबर ऑफ बाकी 4 बी, सी, ई और एफ का डबल है। यानी कि अगर इसने एक्स नंबर ऑफ इवेंट जीते तो उन्होंने 2x जीते हुए हैं व्हिच इज़ 18 दोनों का सब। 18 मतलब 3x इज इक्वल टू 18। तो वहां से हम कर पाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने 12 जीते होंगे और यहाँ पे इन्होंने 6 जीते होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 6 18 और यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 6 है और ये डबल है। ये 12 कैसे हुआ होगा? अगर ये सोचो तो ये 12 हुआ होगा जब इन्होंने 4-4 राउंड जीते होंगे, तभी पॉसिबल है। तभी ना 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। सॉरी 3-3 राउंड जीते होंगे तभी पॉसिबल है। ठीक। तो यानी कि ए के पास अपने को पता है कि 3 राउंड जीतने वाला है। ठीक है। डी भी 3 राउंड जीतने वाला है। ठीक। जी भी 3 राउंड जीतने वाला है एंड एच भी 3 राउंड जीतने वाला है। बट फॉर बीसीईएफ ऐसा नहीं बोल सकते, वो 3-1-1-1 हो सकता है, वो 1-1-2-2 भी हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ अपने को यहाँ पे बन सकती हैं, 6 का डिस्ट्रीब्यूशन वाइज़ अगर हम बात करें। ठीक है। अच्छा, द एथलीट स्पेशलाइज़ इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज़ स्प्रिंट, मिडल डिस्टेंस एंड फील्ड इवेंट। इनकी स्पेशलाइज़ेशन भी दी गई है। वो हो सकती थी स्प्रिंट, मिडल डिस्टेंस और फील्ड इवेंट। ठीक है। जिसमें कि कह रहा है कि स्प्रिंट के अंदर 4 थे मिडल फील्ड इवेंट में और स्प्रिंट में और इधर 2 थे। ठीक है। द एथलीट्स रिप्रेजेंट टीम भी, इनकी टीम भी बता दी गई। वो टीम कौन-कौन सी है? इनकी टीम है टीम फाल्कन, ठीक, टीम टाइटन और टीम वॉरियर। ठीक। अच्छा, जिसमें कि फर्दर कह दिया कि टीम फाल्कन विल हैव 2 एथलीट्स फ्रॉम टीम 4 यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नो एथलीट कैन विन मोर देन 1 इवेंट। कोई भी एथलीट किसी भी एक राउंड में एक इवेंट से ज़्यादा नहीं जीता। मतलब ए का जो 3 विन है वो 3 अलग-अलग इवेंट राउंड्स में आए होंगे। बेसिकली वो ये स्टेटमेंट यहाँ से हम समझ पा रहे हैं। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने रफ वर्क पे लिख दी है। अब है क्या ना, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दी गई है पहले मैं उसको भर लेता हूँ। एक फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग करता हूँ, देखता हूँ जितना हो सके उतना भरता हूँ एंड देन चीज़ों को फिर इनके यूज़ करेंगे। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट पॉइंट नंबर 1। F, a team Falcon athlete specialize in field event one, only one event and that victory came in round number 4। ठीक है। F टीम फाल्कन का बंदा है, फील्ड इवेंट में जीतता है और राउंड नंबर 4 जीतता है और एक ही इवेंट जीतता है जो कि है इसका राउंड नंबर 4। ठीक है। यानी कि राउंड नंबर 4 में एक विनर मिला जिसका नाम है F। ठीक है। फील्ड इवेंट में एक बंदा मिल गया F और यहाँ पे भी एक बंदा मिल गया F। ठीक। पॉइंट नंबर 1 में काफ़ी सपोर्ट कर दिया, काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी। अर्जुन स्पेशलाइज इन मिडल डिस्टेंस एंड डिड नॉट विन इवेंट इन राउंड नंबर 4। अर्जुन जो है मिडल डिस्टेंस में स्पेशलाइज कर रहा है। एक मिडल डिस्टेंस में आपको एक बंदा और मिल गया अर्जुन। ठीक। ये राउंड नंबर 4 नहीं जीत रहा है। अगर ये राउंड नंबर 4 नहीं जीत रहा और 3 राउंड जीता है तो वो कौन से राउंड होने चाहिए थे? 1, 2 और 3। यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीटली नोटेड। नन ऑफ द टीम फाल्कन एथलीट स्पेशलाइज इन स्प्रिंट एंड नन ऑफ द टीम टाइटन और टीम वॉरियर एथलीट स्पेशलाइज इन डिस्टेंस। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, बाद में मदद लेते हैं, पहले डायरेक्ट को ले लेते हैं। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो ना तो वहाँ पे ऐसे ही किया करो। डायरेक्ट वालों को पहले पकड़ लो, इनडायरेक्ट को बाद में आया करो। ठीक। अर्जुन एंड हीरो बिलोंग टू द डिफरेंट टीम। ए और एच अलग-अलग टीम के हैं, बट वन इवेंट इन द एग्जैक्टली सेम राउंड। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए और एच अलग-अलग टीम्स के हैं। ठीक है। ए और एच की टीम अलग है, पर कह रहा है कि उनके जो विनिंग राउंड है वो सेम थे। तो यानी कि एच को भी 1, 2 और 3 में विन देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे एक और बंदा मिल गया एच, एच और एच। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पार्शियली यूज़ हुआ तो सर्कल कर रहा हूँ। ठीक। सी एंड ई बोथ टीम वॉरियर
अच्छा सी और ई दोनों टीम वॉरियर के हैं, तो सी और ई मिल गए यहाँ पे टीम वॉरियर्स का। तो सी पे आ गया टीम टीम वॉरियर और ई पे भी आ गया टीम वॉरियर। सी एंड ई बोथ टीम वॉरियर एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, इनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बोलिए कि अलग-अलग है। ठीक। वन द सेम नंबर ऑफ इवेंट्स, सेम नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब या तो वो इस वाले लॉजिक से जाए तो 1-1 भी हो सकता है, 2-2 भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, फर्दर इवेंट्स केम इन कंसेक्यूटिव राउंड व्हेयरएज़ सी डिड नॉट। अच्छा, कह रहा है फिर आगे ये भी कह रहा है कि सी के जो इवेंट हैं, सॉरी ई के भी इवेंट कंसेक्यूटिव राउंड में है, सी के नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब एक से ज़्यादा इवेंट जीता होगा तभी वो पॉसिबल है। यानी कि मेरे को ये वाला केस लेना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से मैंने कंक्लूड कर लिया कि इसके 2 विन होने पड़ेंगे, इसके भी 2 विन होने पड़ेंगे। यानी कि इसका 1 विन अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 18 विन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है। फर्दर ये कह रहा है कि इनका जो विन है वो कंसेक्यूटिव राउंड में आना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। ठीक है। यही ना कंसेक्यूटिव राउंड्स। ठीक। देखते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। मे बी विल गेट द सर्कल कर देगा बिकॉज़ आई नीड टू रेफर दिस स्टेटमेंट अगेन। भावेश अ फील्ड इवेंट एथलीट, भावेश फील्ड इवेंट वाला बंदा। ठीक। तो भावेश को फील्ड इवेंट दे देते हैं। ठीक। भावेश अ फील्ड इवेंट 1 राउंड नंबर 2, ये केवल राउंड नंबर 2 जीता है। ठीक। तो राउंड नंबर 2 में एक बंदा और मिल गया भावेश। ठीक है। भावेश एंड गुरप्रीत बिलॉन्ग टू द सेम टीम, नन ऑफ देयर विक्ट्री केम इन द सेम राउंड। भावेश और गुरप्रीत सेम टीम के हैं। सेम टीम में अभी वो टाइटन वाली भी हो सकती है, वो एफ वाली भी हो सकती है, तो अभी रुकते हैं। पर कह रहा है कि इनकी जो विक्ट्री है वो सेम राउंड में आई है। भावेश एंड गुरप्रीत बिलॉन्ग टू द सेम टीम, नन ऑफ देयर विक्ट्री केम इन द सेम। अच्छा, दोनों की विक्ट्री सेम राउंड में नहीं आई है। तो बी की विक्ट्री राउंड नंबर 2 में आई है, यानी कि गुरप्रीत की विक्ट्री राउंड नंबर 2 में नहीं आई होगी। तो कहाँ पे आई होगी? 1 में आई होगी, 3 में आई होगी और 4 में आई होगी। यानी कि 1 में आई होगी, 3 में आई होगी और 4 में आई होगी। ठीक। थोड़ा और क्लैरिटी मिल गई। अच्छा, रोकते हैं। इसको भी पार्शियली यूज़ करा ना क्योंकि इसका वो टीम वाला इन्फॉर्मेशन अभी मेरे को यूज़ करना है। दीपक, अ टीम टाइटन एथलीट स्पेशलाइजेस इन स्प्रिंट डिड नॉट विन राउंड नंबर 3। दीपक क्या है? टीम टाइटन का बंदा। तो दीपक मिल गया यहाँ पे टीम टाइटन वाला बंदा। ठीक। इससे अभी पॉइंट नंबर पहले वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं पहले इसको पूरा कर लेता हूँ। स्पेशलाइजेशन स्प्रिंट। ठीक है। तो यहाँ पे अपना दे देते हैं स्प्रिंट। डिड नॉट विन राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 1 3 नहीं जीता है, तो 1 जीता होगा, 2 जीता होगा और 4 जीता होगा। तो 1 जीता होगा, 2 जीता होगा और 4 जीता होगा। तो अभी राउंड नंबर 1 के 4 विनर मिल गए, 4 विनर मिल गए, 3 विनर मिल गए, 3 विनर मिल गए। ठीक है। अच्छा, दीपक और जो है टीम टाइटन का बंदा था तो वो भी लिख दिया। अच्छा, अपने को ये लिखा था कि भावेश और गुरप्रीत दोनों सेम टीम के बंदे हैं। अब यहाँ पे जो सेम टीम है वो यही होना चाहिए था। सॉरी, भावेश एंड गुरप्रीत बिलॉन्ग टू द सेम टीम। अच्छा, यहाँ पे था, सॉरी। भावे यहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन देख लिया था। भावेश एंड गुरप्रीत बिलॉन्ग टू द सेम टीम। तो यार ये देखो ना, ये टीम तो यही होना चाहिए थी क्योंकि ये दोनों इधर नहीं आ सकते, इधर भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे एक और मिल गया, भावेश का मिल गया टीम फाल्कन का बंदा, गुरप्रीत भी मिल गया टीम फाल्कन का बंदा। ठीक। तो अब ये स्टेटमेंट पूरा यूज हो गया। कार्लोस एंड हीरो बिलोंग टू द डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। सी और एच दोनों ही डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हैं। ठीक है। सो इधर बात करें तो अपने को क्या-क्या मिल चुका है? अपने को मिल गया है टीम वाइज़ ए का एच का टीम नहीं मिला, तो ए और एच को यहीं कहीं आना चाहिए था। ठीक है। अब ज़रा वो पढ़ लेते जहाँ पे टीम वाला बात है। तो नन ऑफ द टीम एफ एथलीट स्पेशलाइज इन स्प्रिंट एंड नन ऑफ द टीम टाइटन और टीम वॉरियर्स एथलीट्स इन मिडल डिस्टेंस। ठीक है। अपने को ए के बारे में पता करना है। ए कौन है? मिडल डिस्टेंस वाला बंदा है। अगर मैं ये वाले स्टेटमेंट को पढ़ूँ तो इसके हिसाब से क्या है कि ए मिडल डिस्टेंस वाले होने की वजह से ए यहाँ पे नहीं आ सकता ना, क्योंकि मिडल डिस्टेंस वाला टीम टाइटन और वॉरियर का नहीं है। तो यानी कि ए को यहाँ देना पड़ेगा और ए को यहाँ दे दिया तो यहाँ पे देना पड़ेगा एच को। तो यहाँ पे ये भी मिल गया अपने को टीम वाले लोग। ठीक। अच्छा, स्पेशलाइज़ेशन की बात करें। स्पेशलाइज़ेशन में अपने को अभी 4 स्पेशलाइज़ेशन मिली है। सी की नहीं मिली, ई की नहीं मिली, एच की नहीं मिली, जी की नहीं मिली। ठीक है। अपने को क्या-क्या मिला है वो देखते हैं। अपने को किसका बाकी था? सी की नहीं मिली, ई की नहीं मिली और अ, जी और एच की नहीं मिली है। ठीक है। अभी तक क्या है अपने पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि अपने पास कुछ पॉइंट है जिसको यूज़ नहीं करा गया है।
तो ये वाला नन ऑफ द टीम फाल्कन एथलीट स्प्रिंट में जाते हैं, ठीक है? तो स्प्रिंट में कितने लोग चाहिए? 1 और चाहिए ना? फिर आगे कह रहा है कि जो टीम वॉरियर और टीम एथलीट वाले मिडल डिस्टेंस में नहीं जाते हैं, ठीक है? मिडल डिस्टेंस में नहीं जाते हैं मतलब टीम फाल्कन वाले चारों लोग मिडल डिस्टेंस पे जाएँगे ऐसा कह सकते हैं? ये पॉइंट को फिर से यूज़ करें तो। कह रहा है ना कि ये दोनों में मिडल डिस्टेंस वाले नहीं जाते हैं। तो मिडल डिस्टेंस वाले ये चारों में से कोई एक होना चाहिए था, ठीक? एफ नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, जी हो सकता है, ए नहीं हो सकता। यानी कि कौन होना चाहिए था? जी को होना चाहिए था। ठीक, आई होप ये समझ आएगा, फिर से बता देता हूँ। कह रहा है कि भई ये जो मिडल डिस्टेंस है, ये लोग ये दोनों नहीं जाते हैं, तो मिडल डिस्टेंस वाले फाल्कन टीम के वाले बंदे होने चाहिए थे। तो फाल्कन के चारों में से कोई 2 मिडल डिस्टेंस है, तो एफ और बी का स्टेटस पता है तो जी और ए हैज़ टू बी मिडल डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक बंदा और मिल गया मिडल डिस्टेंस वाला, ठीक? अच्छा, यहाँ पे ये 2 लोग मिल गए। अब अपने को क्या पता है, सी और ई का स्पेशलाइज़ेशन अलग है, सी और एच का अलग है। तो यार यहाँ पे ध्यान देना ना, सी और ई का अलग है, सी और एच का अलग है। तो मतलब अब यहाँ पे तो कुछ नहीं दे सकते, तो सी को यहीं देना पड़ेगा, ई और एच को यहाँ दे सकता हूँ, या सी को यहाँ देना पड़ता है, ई और एच को यहाँ देना पड़ता है, जो कि प्रॉब्लम कर देता है। क्यों? फिर उस केस में यहाँ पे 3 रहते और यहाँ पे भी 3 हो जाते। सो बाय दैट लॉजिक ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ठीक है? तो ये पॉइंट हमने यूज़ कर लिया। सी और एच का, सी और एच का मतलब सी का मिल गया अपने पास स्प्रिंट, ई का मिल गया फील्ड एक्सपर्ट, ठीक है? यहाँ पे भी अपने को मिल गया फील्ड एक्सपर्ट, ठीक? अब अपने पास बच गया है सी और ई का वो कंसेक्यूटिव राउंड वाला पार्ट, जो हमने यहाँ पे लिख रखा था, ठीक है? कंसेक्यूटिव राउंड क्या होने वाला था? अपने को पता था कि इट हैज़ टू बी 1 और 2, 2 और 3 और 3 और 4 में से कुछ एक होने वाला था, ठीक है? अपने को क्या पता था कि सी और ई दोनों टीम वॉरियर के हैं और दोनों अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन के और सेम नंबर ऑफ राउंड जीते, पर ई का कंसेक्यूटिव राउंड है, सी का नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान दो तो अपने पास 4-4 3-3 मिले हैं, ठीक है? तो मतलब अगर मैं ई को यहाँ देता हूँ तो सी को ये देना पड़ेगा और इसका कंसेक्यूटिव बन जाएगा। सेम लॉजिक से अगर मैं यहाँ दे देता हूँ तो इसको यहाँ देना पड़ेगा, तो मतलब ये दोनों केस नहीं ले सकते, मेरे को यही वाला लेना पड़ेगा। यहाँ से ये भी मिल गया यानी कि यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा तो वो कंसेक्यूटिव बन जाएँगे और सी को यहाँ दे देंगे जिसकी वज़ह से वो कंसेक्यूटिव नहीं बन पाएगा, यानी कि सी का बन जाएगा 1 और 4, इसका बन जाएगा 2 और एंड दैट इज़ हाउ वी कंप्लीटेड दिस सेट, ठीक है? ओवरऑल तो भाई मॉडरेट से टफ सेट है। मतलब ये इतना आसानी से बन गया है, इतनी सारी चीज़ें दिख गई हैं, बट बहुत पेनफुल रहा होगा और बहुत एग्ज़ाम वाले फेज़ में बहुत निकालना टफ रहा होगा, ठीक है? बट एक क्योंकि ना ये जब था, ये जो सेट है ये 6 क्वेश्चन के साथ वाला था। तो उस हिसाब से देखो तो ये वैल्यू फॉर मनी का है, ठीक है? मतलब 15 से 18 मिनट में वो 18 नंबर देके जाता है क्योंकि सेट लेंथी है, लॉजिकली बहुत टफ नहीं है, ये तो समझना ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी इवेंट्स वर वन बाय एथलीट फ्रॉम टीम एफ? टीम एफ वाले मतलब एफबीजीए, एफ यानी कि 1, बी 1, जी यानी कि 3, ए यानी कि 3, यानी क्या होना चाहिए था आंसर 8। Which of the following statement must be true? A. Every round had at least one event by athletes from each team. ठीक है। सी और ई, सी है, ई है, सी है, ई है, ठीक है। डी और एच, डी है, डी है, एच है और डी है, ठीक है। एफ बी जी ए है, ए है, ए है और एफ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी राउंड हैड एट मोस्ट 2 इवेंट वन बाय एथलीट्स फ्रॉम ईच स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एवरी राउंड हैड एट मोस्ट 2 इवेंट्स, वन बाय एथलीट्स ईच स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब एफबीईएच, इन चारों को चेक कर लो। तो एफबीईएच में एट मोस्ट है ना, तो यहाँ तो नहीं है। देखो यहाँ पे पंगा आ गया ना, यहाँ पे 3 आ गए। दिख रहा है? एफबीएच में से 3 दिख गए। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर बी इज़ फॉल्स, तो ओनली स्टेटमेंट नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है? व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? फॉल्स पता करना है। ये ला दोनों ही बहुत टफ है, मतलब ये इतना आसान नहीं है निकालना, थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान देना ना सॉल्व करते समय। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? एवरी राउंड हैड एक्जेक्टली 1 इवेंट वन बाय टीम वॉरियर एथलीट्स। टीम वॉरियर ये तो है सीईईसी, तो दिस इज़ ट्रू। एवरी राउंड हैड एटलीस्ट 1 इवेंट वन बाय मिडल डिस्टेंस एथलीट। मिडल डिस्टेंस एथलीट मतलब एजी एजी, ए है, ए है, ए है, जी है। एटलीस्ट की वजह से ये दोनों ट्रू हैं। एवरी राउंड हैड एक्जेक्टली 2 इवेंट वन बाय फील्ड इवेंट एथलीट्स। फील्ड इवेंट मतलब
देखो ये तो अभी मैं यहाँ से निकाल के आया था ना, तो यही होना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि एग्ज़ैक्टली 2 बोला और यहाँ पे तो 3 हो रहे हैं। तो ये तो यहीं से निकल गया था। डी भी चेक कर लेते हैं। एवरी राउंड एट एग्ज़ैक्टली 2 इवेंट वन बाय टीम एफ। टीम एफ मतलब यहाँ पे देखो ए और जी खाली हैं, ए और बी हैं खाली, ए और जी हैं और एफ और बी हैं। तो यानी कि दिस इज़ आल्सो ट्रू। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी। ट्रिकी था क्वेश्चन। ऑप्शंस और ट्रिकी थे। ठीक है? मतलब वही है, बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, बहुत दिमाग शांत करके सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इवेंट वन बाय मिडल डिस्टेंस, स्प्रिंट एंड फील्ड इवेंट। तो स्प्रिंट में डी और सी हैं। डी और सी का मतलब 3 और 2 5। मिडल डिस्टेंस मतलब ए और जी यानी कि 3 और 3 6 यानी कि ये 7 होना चाहिए था, टोटल 18 बनाना होता है। तो अपने को क्या देना है? 6, स्प्रिंट है 5 और 7। ऑप्शन 6, 5, 7 ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? ओवरऑल मॉडरेट से डिफिकल्ट सेट एंड पेपर वाले फेज़ में तो ये टाइम खाएगा। ठीक है? प्रैक्टिस के लिए लेकिन बहुत अच्छा सेट। ठीक है? कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। यार सब्सक्राइब करो, मतलब दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं बोल नहीं पाता हूँ, बट आप सब्सक्राइब करते हो तो दैट एक्चुअली कीप अस मोटिवेटेड और वो नंबर्स दिखते रहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।